A very good evening to everybody. 10 o'clock time, IELTS tips. So let's start with the class. Wishing you all a very good evening. And today our topic is going to be based on writing. We are going to discuss writing, and the writing that we're going to discuss is of discussion essays. So let us see, what do we have to talk about? Okay. So before I start with the class, I would like to tell you that today I had a class in the morning, and that class was held in Lawrence Road branch in the auditorium, Lawrence Road Audi, and the class was from 12 o'clock to 2 o'clock. So I'll be taking another class day after tomorrow, not tomorrow, day after tomorrow. And that class is again going to be based on agree, disagree. See, there is a lot of difference between physical classes and online classes. There's a huge difference between physical and online classes. And the major difference is that we tend to interact more as a group in the physical classes. But if I talk about the electronic classes, here you can interact with me only by text, only by writing it down. And I can interact with you by speaking or by writing down. There we sit together, we form a group. In the group, we take out a lot of errors and everybody talks to each other also. That's a very big difference. So I'm having my class day after tomorrow again. And if anybody has missed out the class, I'd request you to please come forward and join the class. So there were a lot of people today from the online only who were there. And I met them. There were about 5-6 people online, and they were there. I met them, which is pretty healthy. And we discussed, we solved the essay. They were about, I think, 150 to 200 people. In the auditorium, it was full. And it was a very, very good class, a very good class. So today we'll be working on discussion essays. And if anybody wants to attend the class, they are most welcome, because I'm getting a lot of requests from the students in our other branches like Taran Taran, Batala, Gurdaspur, Gurgaon, Jalandhar, Ludhiana, Kapurthala to come there and also deliver the same lecture. So hopefully I'll be continuing with this lecture, and I'll be giving this lecture in other branches also outside the city. So in case anybody wants to join, you are most welcome to come and join. And just you have to tell me or tell the security person there that I'm from YouTube. I have already given them in writing. Koi bhi YouTube se aega to usko allow kar dem. So you are always welcome to join anywhere. Don't worry, there are no charges for this. Don't worry about it. ठीक है जी, डिस्कशन टॉपिक्स देखते हैं हमारे ना। आज मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि सर बाकी एग्जाम्स किस चीजों के लिए होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं जो बाकी एग्जाम्स होते हैं किसके लिए होते हैं। सबसे पहला टॉफल है। टॉफल का जो एग्जाम है ना, ये टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज है। ये यूएस से जाने के मेन काम आता है। ये बहुत ही ओल्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। मैं सीबीएस के आगे लिख देता हूँ कंप्यूटर बेस्ड, और बहुत ही अच्छा एग्जाम है। हमारे पास की कोचिंग होती है, अगर कोई करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम है पीटीई। पीटीई का आपको पता ही होगा, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है। अब ये जाने के लिए कहाँ पे काम आता है, आजकल कनाडा ने भी लेना शुरू कर दिया है, यूएसए ने भी लेना शुरू कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया भी इसको ले रहा है। तो बहुत सी कंट्रीज, न्यूजीलैंड भी इसको ले रहा है, यूके भी इसको ले रहा है, सारी कंट्रीज ने इसको लेना शुरू कर दिया एग्जाम को। तो प्रिटी अच्छा एग्जाम है, बहुत बढ़िया है। कंप्यूटर चेक करता है सब कुछ, और बहुत ही सही इसके नंबर आ जाते हैं। नेक्स्ट आईएलटीएस आप कर ही रहे हैं, आप सबको पता ही आईएलटीएस के बारे में। नेक्स्ट आ गया ओईटी। ये एग्जाम है डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल प्रोफेशंस के लिए। तो ये मेडिकल के लिए है, और ये मेनली यूके जाने के लोगों के बहुत काम आता है। यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया जाने के बहुत काम आता है ये वाला एग्जाम। बहुत बढ़िया एग्जाम है और बड़ा महंगा पर है। इसकी एक प्रॉब्लम है, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 587 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का एग्जाम है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम दैट वी हैव इज लाइफ स्किल्स।
जो बंदा यूके जा रहा है ऑन इमिग्रेशन बेसिस, उसके लिए है ये लाइफ स्किल्स, जैसे स्पाउस वीजा हो गया, या कोई ट्रक ड्राइवर है, या कोई लेबर क्लास का बंदा जाना चाहता है, तो उसे लाइफ स्किल्स एग्जाम्स के अंदर भेज सकते हैं हम। और पर मेनली स्पाउसेस के लिए काम आता है ये स्पाउस वीजा, मतलब जो मैरिज के बाद जाते हैं। नेक्स्ट आ गया यूके वीजा, ये भी पढ़ाई के लिए होता है यूके के लिए। नेक्स्ट आ गया सेल्फ। जो सेल्फ का एग्जाम है ये इमिग्रेशन के लिए है। इमिग्रेशन टू व्हाट? इट इज इमिग्रेशन टू कनाडा। सिर्फ एक चीज के लिए काम आता है, कनेडियन इमिग्रेशन। बहुत ही अच्छा एग्जाम है ये, बड़े लोग एग्जाम देते हैं आइल्स में, जो लोग पास नहीं होते वो कनेडियन इमिग्रेशन का एग्जाम दे देते हैं। तो ये आ गए हमारे सारे एग्जामिनेशन। बट अभी आपको बहुत ही मजेदार चीज बता रहा हूं एक मैं। जो आइल्स का एग्जाम है, सपोज आपने फर्स्ट टाइम दिया और आप 3 सब्जेक्ट में पास हो गए, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग में आप पास हो गए, और स्पीकिंग में सपोज करो नहीं पास हुए, नॉट पास इन स्पीकिंग, ठीक है? तो आप ना अभी आने वाले टाइम में, कब शुरू होगा मुझे पता नहीं है इसके बारे में, इंडिया में कब रोल आउट करेंगे, आप सिर्फ स्पीकिंग का टेस्ट भी ले सकते हो दोबारा से। ये 3 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली इसका टेस्ट ले लो। इसको कहते हैं मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग। मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग हम कर सकते हैं आने वाले टाइम में। हमारे पास मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग हो जाएगी, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग। मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग बहुत अच्छी चीज है ये, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। सीडी आइल्स में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो चुका है ये। इंडिया में दिसंबर में शुरू होगा, दिसंबर में इंडिया में शुरू होगा। ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है इनकी। और पेपर बेस्ड टेस्टिंग में, जो पेपर बेस्ड टेस्टिंग है उसमें सारे वर्ल्ड में मार्च में शुरू होगा ये, मार्च में। इसको कहते हैं सिंगल मॉड्यूल एग्जामिनेशन। तो आप एक सिंगल मॉड्यूल भी ले पाएंगे इस एग्जामिनेशन का। ये एक बहुत बहुत बड़ी न्यूज है, जो कि सारे वर्ल्ड में आईएलटीएस टेस्ट टेकर्स का स्टाइल चेंज कर देगी टोटली। इसका फायदा किसको किसको होगा? जो लोगों से रीडिंग क्लियर नहीं हो रही, जो लोगों से राइटिंग क्लियर नहीं हो रही, वो लोग स्पेसिफिकली उसी टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर करके पेपर दे सकते हैं। So this is going to be a wonderful thing for them. So I'll make some more videos based on this. As and when I get more information, as I get one substantial chunk of information, I will be telling it to you. बहुत से लोगों को दोबारा दोबारा पेपर देना पड़ता है, बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है ये। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला है? आईएलटीएस का पेपर मार्च से नेक्स्ट ईयर सिंगल मॉड्यूल भी ले पाएंगे आप, सिंगल मॉड्यूल मार्च से। कंप्यूटर बेस्ड पेपर दिसंबर ऑनवर्ड्स आप सिंगल मॉड्यूल का भी ले सकते हैं, ठीक है? तो ये उन्होंने चीजें चेंज करी हैं, सिस्टम को अपग्रेड किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया सिस्टम हो जाएगा। ओके, अगर आपको इसके बारे में समझ नहीं आती, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, तो मेरे को इस नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपना नंबर 9872552775 चैट बॉक्स में लिख दिया है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे बात बताइए, मैं इस बात को आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि किस तरह से आप सिंगल टेस्ट के मॉड्यूल्स में अपेयर हो सकते हैं, ठीक है? दैट विल बी एक्सट्रीमली गुड। हाँ जी, एक्सेप्ट करेंगे जी वीरेंद्र, सारे एक्सेप्ट करेंगे। तो लेट मी जस्ट रीड आउट ऑल द मैसेजेस, जो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपके कोई कंसर्न्स है इसके बारे में तो प्लीज रेज कीजिए। मैं बैठा हूं, मैं आपको सारे क्लैरिफाई कर देता हूं, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं सब कुछ आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। अलीना शर्मा, शाइनी ग्रोवर, उदयवीर सिंह जम्मू, प्रीति वर्मा, गुरजस कौर, जसपिंदर कौर, गुरजस कौल, जसपिंदर रंधावा, अमोलक एंड वरिंदर सिंह। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। एंड आपने मेरे को बोला गुरजस कौर ने, सर अगेन बस दो, मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ। मैंने आपको सारी बात बता दी है। आईएलटीएस में सिंगल मॉड्यूल का पेपर होने वाला है,
अगर आप किसी भी एक चीज में फेल हो जाते हैं, आप सिंगल मॉड्यूल का पेपर ले सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग क्या होगी उन्होंने हमें नहीं बताई अभी, आने वाले टाइम में बता देंगे। वरिंदर सिंह पूछते हैं जी इंडिया में कब इश्यू होगा? जसपिंदर सीडी आईएलटीएस इंडिया में दिसंबर से शुरू हो रहा है। पेपर बेस्ड आईएलटीएस सिंगल मॉड्यूल टेस्टिंग मार्च में शुरू हो रही है। वरिंदर सिंह जी पूछते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स रीटेक वालों को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, वो सिंगल शीट का पार्ट बन जाएगा आपका। तो अगर आपने 2 DRFs अगर इकट्ठे लगाए हैं तो वो दैट विल बी एक्सेप्टेड। वो देखेंगे, चेक कर लेंगे, उन्होंने परमिशन हर जगह से ले ली है, दैट इज डन। ठीक है, तो काफी जानकारी, काफी गुरु ज्ञान आपको सबको मिल गया। इसके लिए बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। टेस्ट टेकर्स को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी सबके लिए। तो अब हम करते हैं जी आज का कार्यक्रम स्टार्ट। तो मैंने आपको इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस के बारे में सारा बता दिया है, क्या क्या किस चीज के काम आते हैं। आगे चलते हैं। तो आगे मैं आपको डिस्कशन एसेज बताने वाला हूं। डिस्कशन एसेज ना बड़े पंगे में आए हुए हैं आजकल, तो आज हमने ये डिस्कस करना है। मैं आपको लिखवाऊंगा, एक बड़ा ही अजीब सा एसे आपको देने वाला हूं, आप सब उसे करेंगे, डोंट वरी। अभी ना कभी कभी आपको सिर्फ डिस्कस लिखा आता है बस, और कुछ नहीं लिखा आता, खाली डिस्कस लिखा आता है। तो उस केस में हम क्या करें, कितने पैरे बनाएं, समझ नहीं आती। नेक्स्ट आ गया डिस्कस बोथ साइड्स। ये तो समझ आ गया, मैंने 2 पैरे बनाने हैं। डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन, इसमें भी मेरे को 2 पैरे बनाने हैं, एंड थर्ड पैरा मेरा ओपिनियन का होगा, इट विल बी ऑन ओपिनियन। जो कंक्लूजन होगा मेरा ओपिनियन का बन जाएगा, दैट इज ट्रू। जो हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड एसेज, इसकी बहुत बड़ी हेडेक है, बहुत बड़ी। इसको कैसे हैंडल करना है, मेरे को लगता है इसका मेरे को सेपरेट सेशन बनाना पड़ेगा। हाइब्रिड एसेस किस तरह के होते हैं, कैसे इसको हैंडल करते हैं। तो आज मैं आपको डिस्कस बोथ साइड्स करवाने वाला हूं, और मैं करवाने वाला हूं डिस्कस एसे, ये 2 करवाऊंगा। ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन। अगर किसी बंदे को नहीं पता इसके बारे में तो मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है, इसे जाके प्लीज एक बार स्टडी कर लीजिए, फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके देखते रहो, आराम से देख सकते हो, बड़े इजीली आपको समझ आ जाएगी क्या वीडियो है, बहुत यूजफुल है, बड़े काम आएगी आज। नेक्स्ट करते हैं डिस्कस बोथ साइड्स। अभी हमने ये देखना डिस्कस एंड डिस्कस बोथ साइड्स। सबसे पहले आ गया मेरा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में बार बार बोलता रहता हूं, इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट है, हुक लाइन जो कि ऑप्शनल होती है, पैराफ्रेजिंग एंड थीसिस, BP1 फर्स्ट व्यू, BP2 सेकंड व्यू, जिसमें ओपिनियन नहीं पूछा गया, समरी आएगी, समरी आएगी। अच्छा, अब ना मेरे पास एक टॉपिक है जिसमें लिखा है डिस्कस, बस, और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है डिस्कस। उसका मैं क्या करूं, कितने पैरे बनेंगे मेरे? उसमें मेरे बनेंगे 2 साइडें, वन साइड अदर साइड डिस्कस। हम थर्ड पैरा भी बना सकते हैं, बट दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एक ही मुद्दे के मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत पॉइंट्स हो सकते हैं एक ही मुद्दे के। जरूरी नहीं है A एंड B खाली हो, C पॉइंट भी हो सकता है, D भी हो सकता है, E भी हो सकता है, F भी हो सकता है, अलग अलग पहलू हो सकते हैं सारे। बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 साइड्स वन अदर। सो अगर मैं बात करूं, वापस देखते हैं डिस्कस एसेस की, जहां पे सिर्फ डिस्कस है, डिस्कस बोथ साइड्स हैं, तो इन दोनों में बनेंगे मेरे 4 पैरे, 4। ठीक है, पहला पैरा बनेगा इंट्रोडक्शन, दूसरा पैरा बनेगा मेरा BP1, तीसरा पैरा बनेगा मेरा BP2, एंड लास्ट पैरा बनेगा मेरा कंक्लूजन। जो मेरा कंक्लूजन इसमें होगा ये बनेगी समरी। समरी क्यों बनेगी? क्योंकि इसमें ओपिनियन नहीं पूछा गया मेरे से, मेरे को नहीं पूछा गया आपका ओपिनियन क्या है, जैसे यहां पूछा था आपका ओपिनियन क्या है, इसमें मेरा ओपिनियन नहीं पूछा गया, तो मैं अपना ओपिनियन नहीं देने वाला हूं यहां पे। क्लियर हो गया? तो मैं क्या करूंगा, मेरा फॉर्मेट कैसा बनेगा, यहां पे मेरा फॉर्मेट ऐसा बनेगा। इंट्रोडक्शन में हुक लाइन ऑप्शनल है, पैराफ्रेजिंग एंड थीसिस आ जाएंगे, जो मैं बहुत बारी करवा चुका हूं, आपको आज फिर करवा दूंगा। BP1 first view, BP2 is second view, and conclusion is going to be a summary.
Now let us discuss about the word limits. If I'm making a 4-paragraph essay, my introduction will be 30 to 50 words, my conclusion will be 30 to 50 words, and my paragraph 1 and paragraph 1, 2 of the body are going to be 80 to 90 words. Very, very clear, 80 to 90 words. Now the tips. The first tip is, pehle planning karo, pehle planning karo. Tip number 2, आइडिया सोच के रखो, दोनों साइड्स के आइडियाज लिखने से पहले. Next, while planning, make a list of the ideas in the form of keywords, prioritize the most common ones and write in BP1 and BP2. Next, follow the order of the question when writing BP1 and BP2. Side 1, Side 2, जैसे वहां बोलिए आपने वैसे ही लिखनी है, इसे उल्टा पुल्टा मत करना, फंस जाओगे पूरी तरह से, नंबर कट जाएंगे. ठीक है, जैसे पैरा में क्वेश्चन में लिखा है, some people prefer A while others prefer B. तो आपने अपने ऐसे में पहले A को डिस्कस करना है, फिर B को डिस्कस करना है. अगर टॉपिक में लिखा है some people prefer B while others people prefer A, उस केस में आपने पहले B लिखना है, फिर A लिखना है. जो सीक्वेंस क्वेश्चन की होगी आपकी वही सीक्वेंस बनेगी क्वेश्चन आंसर के अंदर. You have to keep this thing in mind. It is very important, very important. Okay. So now comes more tips. There is no need to write an example in the conclusion, but it is necessary to write 2 examples in the essay. BP1 some people, BP2 other people. ये बात को याद रखना. By people's perspective instead of giving your own opinions. अपने opinions नहीं डालने जबरदस्ती उसके अंदर डालने की जरूरत नहीं है. आपने क्या करना है, आपने लोगों के ओपिनियन देने हैं. सम पीपल अदर पीपल. अपना ओपिनियन नहीं देना. अगर पूछा जाए तो अपना ओपिनियन एंड में देना है, वरना बीच में देने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, whichever side you choose for your opinion, try to paraphrase the language instead of copying the same sentences written in BP1 and BP2. अगर आपने अपना ओपिनियन देना है, if you are giving your own opinion, आपने इंट्रोडक्शन में दिया, BP1 में दिया, BP2 में, आइडिया सबके ले लिया आपने, सबको मिक्स करके नीचे लिख देते हो. नॉट अ गुड आइडिया. क्यों? हर चीज के वर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, पैराफ्रेजिंग करनी पड़ेगी, वरना कॉपी का इल्जाम लग जाएगा आपके ऊपर और नंबर कट जाएंगे, नंबर कटेंगे. So make it very sure you write paraphrasing. Very important. Basic structure: introduction, hook line, paraphrase, thesis statement. Clear हो गया? This is my introduction. Now main para 1. Sentence 1, state your viewpoint, discuss the first viewpoint, example to support it, and wrap up. Body para 2. Same, अपना second viewpoint जो है, आप वहां some people, other people दिए, वो आ जाएगा. Discuss the second viewpoint, example to support this viewpoint, wrap up. Conclusion में 2-3 sentences बनेंगे, summary लिख देंगे सब चीज की. अगर opinion पूछा गया, opinion लिखेंगे, नहीं पूछा गया, नहीं लिखेंगे. Clear है बिल्कुल सबको? Basics of introduction. छोटा रखिए, 30 से 50 वर्ड का. लंबी कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है इसमें. क्लियर कट बात कीजिए, कोई जलेबी बनाने की जरूरत नहीं है. टास्क को आइडेंटिफाई कीजिए. व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? इज इट डिस्कस? इज इट डिस्कस बोथ साइड्स? इज इट डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन? क्या करना है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, क्या होगा. अब हम एक सॉल्व करेंगे. ठीक है. सम पीपल बिलीव that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe it is better to get a job straight after school. Yani, straight after school plus 2 के बाद. यहां कहता है आपको फर्दर एजुकेशन करनी है. फर्दर एजुकेशन करनी है. और यहां लिख रहा है कि आपको +2 तक एजुकेशन करनी है, बाद में नहीं करनी. तो ये बेसिकली हायर एजुकेशन का मामला आ गया. डिस्कस बोथ साइड्स. हायर एजुकेशन करें, यस, या हायर एजुकेशन ना करें, नो. इस बात के ऊपर
हमने डिस्कशंस करनी है सारी, तब हमें आइडिया होगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको यहीं पे रोक रहा हूं। आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंगली ही सब कुछ लिखेंगे। नाउ यू कीप अ पेपर एंड अ पेंसिल विद यू and put a line in between like this, and on one side you say higher education, on the other side after +2, or you say job after school। +2 का मतलब स्कूल ही है, इसमें अब्रॉड में इसको स्कूल ही बोलते हैं, तो मैं स्कूल ही वर्ड लिख लेता हूं। ठीक है, +2 नहीं लिखता। तो ये मेरे 2 लाइंस बन गई। ठीक है, हायर एजुकेशन आफ्टर स्कूल, जॉब आफ्टर स्कूल। तो ये मेरा दोनों साइडें आ गई। ओपिनियन तो मेरे से पूछा ही नहीं गया, अब मैं इन दोनों साइडों के पॉइंट्स लिखूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने पास पॉइंट्स लिखने हैं। 2 पॉइंट लिखेंगे एक साइड पे और 2 पॉइंट लिखेंगे दूसरी साइड पे। ठीक है, 4 पॉइंट्स आपके पास हो जाएंगे, और आप लोगों ने मुझे ये 4 पॉइंट्स चैट बॉक्स में लिख के बताने हैं कि आपके 4 पॉइंट्स क्या हैं। तो मैं आपको टॉपिक दोबारा से दिखा रहा हूं, इसके मुझे 4 पॉइंट्स निकाल के दीजिए। 4 पॉइंट। चलो, वंडरफुल। अभी आप लोगों ने काफी पॉइंट सोच लिए हैं, तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ लोगों ने तो ऐसे लिखना शुरू कर दिए। बहुत बढ़िया बात है। सो लेट मी सी व्हाट पॉइंट्स आई हैव हियर। ओके, वन साइड, अदर साइड। तो यहां पे अगर मैं जॉब करता हूं आफ्टर स्कूल, और यहां पे मैं एजुकेशन करता हूं, तो मैंने इसके पॉइंट्स लिख लिए हैं। अगर मैं एजुकेशन करता हूं, मेरे को ज्यादा नॉलेज मिलती है, बेटर इक्विप्ड फॉर जॉब हो जाता हूं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है मेरे को, जो मेरे को जॉब से नहीं मिलेगी, मेरे को एजुकेशन से मिल जाएगी, लेटेस्ट चीजें क्या आ रही हैं। अगर मैं जॉब करता हूं तो जॉब बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर मैं फर्दर एजुकेशन करता हूं, तो इसके अदर साइड आ गई ना फर्दर एजुकेशन की, तो वेस्टेज ऑफ टाइम में फर्दर एजुकेशन। कभी कभी एजुकेशन यूजलेस हो सकती है बहुत ज्यादा। तो मैं आपको बताता हूँ यूजलेस कैसे हो सकती है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, किसी के लिए ऑफेंस नहीं है ये, दिस इज नो ऑफेंस टू एनीवन। नाउ सपोज अगर आप मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर लेते हैं और आपने पॉलिटिक्स में नहीं जाना, आपने खाली पॉलिटिकल साइंस कर ली है, जिसका आपको कोई यूज नहीं होगा अगर आप उस लाइन में नहीं जाते।
सपोज आपने इंग्लिश टीचर बनना है एंड आपने मास्टर्स नहीं करी इंग्लिश में, बैचलर्स नहीं करी इंग्लिश में, आपने बीएससी मैथमेटिक्स कर ली है, तो क्या आपको मैच करेगा वो कि नहीं करेगा? मेरा आंसर है नहीं करेगा, राइट? तो आपको बीएससी मैथमेटिक्स कोई काम नहीं आने वाली है, ना एमएससी मैथमेटिक्स काम आने वाली है। अगर आप 12वीं के बाद इंग्लिश टीचर बन जाते तो बेटर होता, बट एक मेच्योरिटी वर्ड भी होता है कोई, वो भी आ जाती है बंदे के अंदर, ठीक है? तो ये तो चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं सारी की सारी। अब मैंने ना इसको पेपर पे उतारना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा इंट्रोडक्शन। तो यहां पे बहुत लोगों ने इंट्रोडक्शन पहले ही लिख ली है। आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस, वेरी इंप्रेस्ड। देखो मैंने आपकी इस हद तक ट्रेनिंग कर देनी है ऑनलाइन कि आप ऐसे देखोगे, थोड़ा सोचोगे दिमाग में, लिखना शुरू कर दोगे, आपसे लिखा जाएगा। इतना हाथ खुल जाना आपका। और मैं देख रहा हूं हाथ खुल गया हुआ है, बहुत लोगों का हाथ खुल गया, विच इज अ वंडरफुल थिंग। चलिए आपके सारे मैसेजेस पढ़ते हैं और देखते हैं आपने क्या क्या लिखा। गुरजस कौर जी लिखती हैं, सर एक टास्क 2 के टाइम मुझे आइडियाज की बहुत प्रॉब्लम आती है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूं? वेल, बड़ा सिंपल तरीका आइडियाज को सॉल्व करने का। आज भी मेरे क्लास में एक लड़का बैठा हुआ था जो मैंने मास्टर क्लास ली है, तो वो लड़का मेरे को एक ही बात कहता है, सर जब टीचर आइडिया देती है तो मुझे आ जाता है, वैसे मेरे को आइडिया नहीं आता कोई भी। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, गुरजस आपको ट्रिक दे रहा हूँ, सबको, जितने लोग बैठे हैं ट्रिक दे रहा हूँ सबको। एक चीटिंग करने वाला हूँ थोड़ी सी, तो चीटिंग समझ लेना मेरी, ठीक है? चीटिंग सिखा रहा हूं मैं, ऑनलाइन बैठ के चीटिंग कैसे करते हैं, ठीक है? ओके, तो चीटिंग सिखाता हूं आपको, डोंट वरी। तो ना आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, www.webbers.in। ये हमारी वेबसाइट आ गई, ठीक है? यहाँ ना ब्लॉग है, ब्लॉग में चले जाओ। अब यहाँ पे ना मेरे पास आईएलटीएस में आईएलटीएस राइटिंग है, यहाँ पे आ जाओ। आ गए? अब इसको एंड में स्क्रॉल कर लो, एंड में, एंड में, ठीक है? अब ना मैं आपको मार्क कर देता हूं यहाँ पे। ये चीटिंग होने वाली थोड़ी सी, डोंट वरी, कर लो, कोई बात नहीं। अच्छी वाली चीटिंग है, बुरी वाली नहीं है ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है? मैं ना एक काम करता हूँ, जूम कर लेता हूँ इसको, एंड देन आई एम गोइंग टू मार्क इट सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रीड इट। तो ये ना व्हाट आई हैव डन फॉर द पीपल हु जस्ट कांट गेट आइडियाज, तो मैंने ना उनके लिए राइटिंग के आइडिया सारे लिख दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब ना इसको मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ। राइटिंग आइडियाज 1 को खोला, ठीक है? अब टॉपिक है एडवर्टाइजिंग। सपोज आपको पता ही नहीं चल रहा एडवर्टाइजिंग का पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो मैंने एडवर्टाइजिंग का पॉजिटिव लिख दिए सारे पॉइंट्स ये वाले। अब आ गया नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका, मैंने नेगेटिव भी लिख दिए। फिर आ गया इसका ओपिनियंस क्या होते हैं, क्या ओपिनियंस हैं, ये पढ़ लो। फिर आ गया एनिमल राइट्स। फिर आ गया आपका जूस क्या होती हैं, नेगेटिव्स ऑफ जूस क्या हैं, सिटीज आ गई। इस तरह ना मैंने सारे टॉपिक्स के बना के रख दिए हैं आपके लिए। तो आपको ना गुरजस पता है कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम लगा लो 1 डे। आप 1 डे में ना सारा पढ़ सकते हैं, सारा पूरा पढ़ के आपके पास आइडियाज का बहुत भंडार हो जाएगा। आपको भूल जाएंगे फिर, पक्की बात है। एग्जाम से पहले फिर से पढ़ लेना, ऐसे लिखने पहले से पढ़ लिया करो। रोज का रोज अगर पढ़ोगे, 6-7 बार ही पढ़ोगे, आपके दिमाग में आइडियाज ही आइडियाज आ जाते हैं। अब इन आइडियाज का फायदा क्या होगा? इन आइडियाज का फायदा नंबर 1, you can have a much better writing with this. Idea number 2, your speaking will also improve. क्यों? जो discussion topics होते हैं, they are the same topics of writing. So now you have got double benefit here. Writing will improve and speaking will improve. Third benefit is one more. Now, for example, a topic comes on reading.
and you can't understand the topic, but आपको ideas हैं क्या होगा reading में, so you can easily attempt the reading and you can start understanding the reading very well. Fourth benefit, topics ये रहने हैं, listening section 4, listening section 3, इनके आइडियाज भी सेम टॉपिक्स के ऊपर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनिमल राइट्स, सिटीज, अर्बन डेवलपमेंट, ये टॉपिक्स होते हैं उसमें भी आपको आइडियाज आ जाएंगे. तो बेसिकली आपका जो आइडिया है वो चारों जगह जाएगा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. ये मैंने 5 फाइल्स लिख के लगाई हुई हैं. आई नो चीटिंग है, बट बहुत अच्छी चीटिंग है, करिए इससे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, चलिए वापस चलते हैं और आप लोगों के वापस पॉइंट्स देखते हैं आप लोगों ने और क्या लिखा है. जसपिंदर धावा, प्लीज गिव अ मास्टर क्लास ऑन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. जसपिंदर मैम, मैंने अपने शेड्यूल में रखी हुई है. जब आपके ब्रांच वाले बोलेंगे मेरे को कि मास्टर क्लास अरेंज कर दो, मैं कर दूंगा. देखो आपके ब्रांच वाले ना अरेंज करते हैं सारे बंदों को, कितने लोगों ने पहले क्लासेस लगाई हैं, किसने नहीं लगाई हुई, किसका टेस्ट आ रहा है, किसका टेस्ट नहीं आ रहा. तो आप अपने ब्रांच मैनेजर से जाके एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए कि सर हमारी क्लास लगवा दो ये वाली, मैं जैसे मर्जी जहां से मर्जी टाइम निकाल के आपकी क्लास लगा दूंगा. नॉट टू, मेरे पास मटेरियल तैयार पड़ा है, हैंडआउट्स तैयार पड़े हैं, सब कुछ तैयार पड़ा है, आपने खाली बोलना है, मैंने क्लास लगा देनी है. डोंट वरी, मैं अमृतसर में हूँ, मेरा फायदा उठाओ जितनी देर अमृतसर हूँ, यूज कीजिए मेरे को, नो प्रॉब्लम. वरिंदर सिंह जी ने ऐसे लिख दिया है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड वरिंदर. Some individuals are in the favor of attending classroom education at universities or colleges for a prosperous future, whilst others opine that getting an employment after offer straight after high school is better option. I am discussing both the views. Very good, Virinder. आपका हाथ पूरा सेट हो गया है ऐसे लिखने में. जसविंदर धावा, further education is mandatory for a good job opportunities. Moreover, people do not survive in this competitive world without higher education. जसपिंदर, ये आपका ओपिनियन है, मैंने आपका ओपिनियन नहीं मांगा, मैंने आपसे पैराफ्रेजिंग मांगी है. अपना ओपिनियन देना कि लोग जिंदा नहीं रहेंगे, ये नहीं होगा, वो तो मांगा ही नहीं गया. ओपिनियन नहीं देना, आपने दोनों साइड्स डिस्कस करनी है. वरिंदर, हायर एजुकेशन इज मैंडेटरी फॉर डेप्थ लर्निंग, फॉर इन डेप्थ लर्निंग, ये वरिंदर जी लिख रहे हैं, ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन द मार्केट एंड गेटिंग अ लुक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी. वेरी गुड. उदयबीर सिंह जम्मू लिखते हैं, आफ्टर स्कूल फिनिश्ड कंडक्टिंग लर्न इन यूनिवर्सिटी, gain more knowledge and they accept higher education degree with gain. Okay, तो ये आपने ideas लिखे हैं. All right. जसविंदर धावा ने लिखा है, however others believe that it's an emphatically futile because it is waste of time and money to do higher study. Right. Okay. Sarabjit ji, very good evening. Okay. Right. I can understand what you're writing. So I want you to write more. तो अब आपके पास मेरे को ना फटाफट इसकी एक बॉडी पैरा बना के दिखा दो, तो मैं आप सबको मान जाऊंगा. एक साइड का बॉडी पैरा बना के दिखा दो, मैं आपको पॉइंट्स दे देता हूं, मेरे को बॉडी पॉइंट लिख के दिखा दो, मुझे पता चल जाएगा कि आपको डिस्कशन ऐसे आगे. फिर मैं आपको एक बहुत ही घटिया ऐसे डिस्कस करने वाला हूं, बहुत घटिया ऐसे. देखते हैं घटिया ऐसे कैसे डिस्कस होगा, उसके बारे में आपको कोई पॉइंट्स भी नहीं होंगे, मैं समझाऊंगा पॉइंट्स क्या. तो आपने मेरे को सिर्फ इस साइड का, यू आर जस्ट गोइंग टू राइट अबाउट दिस साइड ऑफ एन एसे. Some people believe that studying at university or college is the best route to successful career. That is what you're going to write. You are going to write down. Type फटाफट फटाफट जितनी जल्दी टाइप कर सकते हैं टाइप कीजिए और मुझे लिख के दिखाइए. टाइप कीजिए, मुझे लिख के दिखाइए. This is the practice that I'm giving you. आज मैं आपको बता देता हूँ मास्टर क्लास में मेरे साथ क्या हुआ है. मैंने मास्टर क्लास में आज लोगों को बोला लिख के दिखाएं मेरे को, उनको समझ नहीं आ रही कैसे लिखना है, तो मैंने सबको बताया भाई यूट्यूब वाली क्लास में आइए, वहां लोग यूट्यूब पे फटाफट लिख के दे देते हैं मेरे को, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है. सिर्फ प्रैक्टिस ही गेम है, याद रखना, और कोई गेम नहीं है. प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस. सो प्लीज राइट इट डाउन. राइट डाउन द बॉडी पैरा 1 of only one part which I have marked in red color. That's it. I want body para for this.
What is the benefit of going to university for a successful career? You got to write it down. Okay, so let me see what you have written, and I can explain it to you, what you wrote right or wrong. So, Varinder Singh says higher education is mandatory for in-depth learning of new technologies in the market and getting a lucrative job opportunity. Udaybir Singh ne ideas diye hain: after school, finishing conducting, learn in university, gain more knowledge. After that, accept higher post degree they gain. Okay. Jaspinder Randhawa says, however, others believe that in the emphatically futile because it was a waste of time and money to do higher study. Sarabjit Singh says, good evening, sir. Jaspinder says, I discuss both. Rohini Sharma says, today, school students are learning many skills in their schools, only which is helping them a lot. Jaspinder Randhawa bolti hain that I am also in the master class today. It was a superb class. Thank you, Jaspinder ji. I'm very glad that you liked the class. And I'll be very glad agar aapke bands bahut achhe aa jayenge. That will be the best thing. All the best for your good exam. Rohini Sharma. If they directly involve themselves in jobs after competition of school, this will help them to live their livelihood in a very early age. Udaybir Singh Jammu says, few of the individuals think that people studying in university, they gain knowledge and meet with their new friends, conversation with friends. Gagan Pannu says, I opine in favor of the formal viewpoint. Varinder Singh says, moreover, these institutes also offer varied placement options even before the completion of the study, as various organizations visit there with work offerings. Okay, pretty good. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. लिखना आ गया आपको. I'm glad आपको लिखना आ गया है. आप same format follow कर रहे हैं जो मैं करवा रहा हूं आपको, and you are writing it down in a beautiful manner. So let us do one thing. I will go now and forward this class and reach to this class now. Okay. Now here we are, and we are going to discuss this particular thing, which is going to be a tough nut to crack. And the problem here is the essay. Essay is a very big problem here. अब ना इसमें ना एक चीज नोट करो. Note down one thing here. इसने लिखा है discuss the idea. ना इसने लिखा है both sides. ना इसने लिखा है आपका ओपिनियन क्या है. कुछ नहीं लिखा हुआ. इसने खाली लिखा है डिस्कस द आइडिया. आइडिया कौन सा आइडिया कहता है जी? Even though globalization affects the world's economies in a positive way, its negative side should not be forgotten. So we are going to discuss about the positive side and the negative side of globalization. Positive way, negative side should not be forgotten. Now, यहाँ पे आती है discussion.
बहुत मेजर डिस्कशन। ग्लोबलाइजेशन होती क्या है? Does anybody know what is globalization? Please write down in the chat box if you know what is globalization. Globalization is a concept. It's a concept. You have to understand what is globalization. Write it down, what is globalization. पॉजिटिव और नेगेटिव तो बाद में देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन अपने आप में क्या चीज है वो देखना है। और मैं आपको अभी रिसर्च करना सिखाने वाला हूं कि रिसर्च कैसे की जाती है कोई भी चीज के ऊपर जो आपको नहीं आती। गलत लिखने से बेटर है डू सम रिसर्च वर्क, डू सम रिसर्च वर्क। ओके, सो लेट अस सी what is the meaning of globalization. Udaybir Singh says achieve high goal. Sina Rocky says globalization effects. Sina Rocky says import export. Udaybir Singh Jammu says achieve the highest goal, highest salary. Sina Rocky says exchange the goods among countries. Okay, so let us do some research work right now. What is globalization? ठीक है, तो मैं इसको ब्राउजर खोलता हूं और यहां लिखता हूं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एंटर। ग्लोबलाइजेशन, ये तो कोई मतलब ही नहीं निकला जी। यहाँ पे यहाँ आ गया अजीब सा भूमंडलीकरण, पता नहीं क्या है ये। नीचे जाके देखते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का ना हम यहां से पूरी डेफिनेशन उठा लेते हैं और इसको हम स्टडी करेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन, लेट मी मार्क इट ऑल्सो ताकि आपको समझ ज्यादा आ जाएगी। Globalization is the word used to describe the growing interdependence of the world's economies, cultures, and population. It is not only economies, it is culture and population brought about by the cross-border trade in goods and services, technology, and flows of investment, people, and information. This is called as globalization. तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला हमारी जो इंटरडिपेंडेंस हो रही है। चलो इसको करके सोच के देखते हैं ग्लोबलाइजेशन कैसे होती है। अगर आप लोगों ने, लेट मी सी, कोई चीज देखते हैं यहाँ पे, ये मार्कर लिया है, ये मार्कर डॉम्स का है। इसका जो प्लास्टिक है वो चाइना से आया है। इसकी जो रीफिल है अंदर उसकी इंक इटालियन है और ये इंडिया में बना है। अलग अलग चीजें हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई, ये ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट। आप लोग कनाडा जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन है। आप लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन है। आपको सारी अब्रॉड की न्यूज पता है, ग्लोबलाइजेशन है। सो दिस इज ग्लोबलाइजेशन। व्हेन यू गो अब्रॉड उनका कल्चर सीख। नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज वैलेंटाइन डे, यू आर सेलिब्रेटिंग थैंक्सगिविंग डे, यू आर सेलिब्रेटिंग इट इन इंडिया। हैलोवीन आया, यू आर सेलिब्रेटिंग हैलोवीन। दैट्स अगेन एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंडिया के फेस्टिवल्स, दिवाली, it was celebrated in White House in America. Effect of globalization. Again, a lot of people from India are going there to USA. The cultures are becoming similar. Information is becoming similar. You are wearing clothing which is so similar. Now, for example, अगर हम Instagram पे जाते हैं, नया ट्रेंड आता है, अब्रॉड में भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, सेम ग्लोबलाइजेशन। पीछे मैंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखा, एक नया ट्रेंड इंस्टाग्राम पे चल रहा है, दैट काला चश्मा। काला चश्मा जो है उसके अंदर एक कोई ग्रुप है, बाहर का ग्रुप है, फॉरेनर्स हैं, वो इंडियन गाने पे डांस कर रहे हैं, फिर इंडियन गाने उन फॉरेनर्स के डांस पे डांस कर रहे हैं। प्योर ग्लोबलाइजेशन। We did not do this kind of a thing 10 years ago. This is happening only because we have apps, we have global things happening at a global level. Globalization. ठीक है, तो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का बहुत कुछ आ गया, बहुत इंफॉर्मेशन आ गया। दोबारा ऐसे देखेंगे,
Even though globalization affects the world's economies in a positive way, it is affecting the economies in a positive way. Its negatives should not be forgotten. इसकी नेगेटिव साइड नहीं भूलनी चाहिए हमें. मैंने तो सारा कुछ पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव क्या होगा इसका, अब वो देखते हैं. तो मैं ना लिख देता हूं पॉजिटिव साइड क्या बताइए. पॉजिटिव साइड, तो मेरी पॉजिटिव साइड में मैंने लिख दिया सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, आइडियाज एक्सचेंज, गुड्स एक्सचेंज. गुड्स मतलब सामान. सर्विसेज एक्सचेंज, सर्विसेज मतलब जैसे कॉल सेंटर इंडिया में बने हुए हैं, सर्विसेज दे रहे हैं हम ग्लोबली. इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत कुछ है. तो ये आपकी पॉजिटिव साइड हो गई. अब चलते हैं नेगेटिव साइड को लेके. नेगेटिव साइड, इसकी नेगेटिव साइड क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. नेगेटिव साइड क्या हो सकती है, नेगेटिव साइड. तो बताइए जी, मेरे को लिख के बताइए नेगेटिव साइड क्या हो सकती है. इसकी नेगेटिव साइड क्या हो सकती है. तो देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या लिखा. उदयवीर सिंह लिखते हैं, सीना रॉकी लिखते हैं जी एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग कंट्रीज. उदयवीर सिंह लिखते हैं गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. उदयवीर सिंह जब लिखते हैं दोबारा से टू अदर नेशन. अमोलक सिंह सेज ग्लोबलाइजेशन मींस स्पीड अप मूवमेंट एंड एक्सचेंज. Sina Rocky says in simple words, globalization is an exchange of goods, services, cultures, languages, ideologies, etc., etc. Very good. And manpower too. Manpower भी है बीच में. तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव साइड. अब इसकी नेगेटिव साइड देखते हैं. पॉजिटिव साइड तो इकोनॉमीज को बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट करती है. अब देखते हैं क्या इफेक्ट करती है. ठीक है, ये तो पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड हो गई. सबसे पहले इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से इफेक्ट कर रही है. कैसे इफेक्ट करती है वो देखते हैं. तो अगर हम देखें पॉजिटिव साइड इसकी, तो इफेक्ट कैसे कर रही है. मोर मनी एक्सचेंज, बेटर सर्विसेज, चीपर सर्विसेज. ये पॉजिटिव साइड होगी. अब नेगेटिव साइड में चलते हैं. नेगेटिव साइड क्या होगी. नेगेटिव साइड बहुत ज्यादा है. सोच के देखो नेगेटिव साइड क्या है ग्लोबलाइजेशन की. दिमाग लगाओ नेगेटिव साइड क्या हो सकती है. तो सीना रॉकी लिखते हैं जी paradoxically a rise of crime, deteriorating environment, disrespect among culture, extinction of language due to monolithic behavior towards English. All right, very good idea. Let's figure it out. और कुछ है आपके माइंड में इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा. तो हम चलते हैं वापस इंटरनेट के ऊपर और यहां जाके लिख देते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ये हमारा 12 नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आ गया. ठीक है, बहुत से इफेक्ट्स आ गए. व्हाट आर द 5 नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नंबर 1, अनइक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ. नंबर 2, लैक ऑफ लोकल बिजनेसेस. लोकल बिजनेस खत्म हो रहे हैं. इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ ग्लोबल रिसेशन. सारा का सारा वर्ल्ड रिसेशन में चला जाता है, इकोनॉमिक रिसेशन में आ गया. चीप लेबर मार्केट्स एक्सप्लॉइट हो रही हैं. जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रही है. इंडिया से जॉब्स अमेरिका चली गई, अमेरिका से इंडिया आ गई, वहां लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, कभी यहां लोग अनएम्प्लॉयड हो गए. ये नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है. अब मैं लिखता हूं पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होते हैं. पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो अब जाके चेक करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ 5 पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है. तो हमारे पास 5 ग्लोबल इफेक्ट्स के हैं. Access to new cultures. Globalization makes it easier for them to access foreign culture, including food, music, art, spread of technology and innovation, lower cost of products, higher standards of living across the globe, access to the new markets, access to the new talent. कितना कुछ आपके पास आ गया. तो मैंने आपको ये चीज सिखाई है इसमें कि कभी भी आपका कोई ऐसे आए उसे देखिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं हर रोज ऐसे डालता हूं इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जो पास्ट एसेस होते हैं, उससे पढ़ो. इंटरनेट पे जाओ, थोड़ा रिसर्च वर्क करो, फिगर आउट करो. आप जो कहते हो ना हमें आइडियाज नहीं आते, खुद मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, यही हाल है. आइडियाज ढूंढने पड़ते हैं, खुद करना पड़ता है ये काम. अगर आप सोचो कि टीचर आपकी एक एक मामले में मदद कर देगा, इट इज नॉट पॉसिबल. हम लोग आपको फ्रेमवर्क्स दे सकते हैं, बट अगर आप सोचो कि
आपका ऐसे हम लिखते हैं वो पॉसिबल नहीं है, आइडियाज आपको ढूंढने ही पड़ेंगे। चलिए अब मेरे को ना बढ़िया सी इंट्रोडक्शन 10 मिनट के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बना के दिखाइए। डिस्कस द आइडियाज, मेरे को बढ़िया सी चाहिए। Sina Rocky says mixed breeding. Jaspinder says lethargic approach owing to globalization. Arjun Singh says people forgetting our culture. Virinder Singh says loss of original identity of culture and traditions. Jaspinder Randhawa says lack of employment. Virinder Singh says overusage of rare resources present in specific parts of the world. Beautiful. I am loving the way you are doing the research work now. Wonderful. Very well done. अब इसके बारे में मेरे को जल्दी से इंट्रोडक्शन लिख के दिखाइए तो मैं मानता हूं। Leena Sharma says large companies can take local offshore businesses. Very good, Leena Sharma. Amolak Singh says cultural loss. Good, good, very good, very good. Write it down. Write down more things. मेरे को इंट्रोडक्शन लिख के दिखाइए. Just write the introduction. 30 to 50 words की इंट्रोडक्शन लिख के दिखाइए. 30 to 50 words introduction. इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपने? आपने लिखना है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग जिसने नहीं करी हुई, मेरी एक यूट्यूब की वीडियो बनी हुई है पैराफ्रेजिंग के ऊपर। पैराफ्रेजिंग की वीडियो एक बार चेक कर लीजिए। पैराफ्रेजिंग प्लस थीसिस, बस इतना काम चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं चाहता, बस दैट्स इट। इसे पैराफ्रेज कीजिए और इसको लिखो थीसिस। दैट्स इट, नथिंग एल्स। Discuss the idea, paraphrasing, and discuss the ideas quickly. Udaybir Singh, write down lack of traditional and cultural, rise of crime. Good, great. Write down the introduction of this part. I will read it out and we'll finish up the class. कल फिर से राइटिंग की क्लास होगी। मैंने हर तरह का ऐसे कवर करना आपके साथ ताकि आपको सारा जो आपका डर है ना एसेस का वो निकल जाए। मेन डर जो आपको लगा रहता है मर गए मर गए मर गए, ऐसे आ गया ऐसे आ गया, वो निकल जाए। काफी लोगों का डर निकल चुका है इसमें। वेरी गुड, आई एम ग्लैड, निकल चुका है काफी डर। राइट डाउन मोर, राइट डाउन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। आई जस्ट वांट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। Write down the introduction, please, so I can read it out. Okay, so Rohini Sharma writes down, as per the given statement, economies of the nation is positive, affecting the worldwide, but there are negatives cannot be brushed aside. Sina Rocky, globalization has impacted the world's economies in both optimistic and pessimistic ways. The same notion has been examined in the subsequent paragraph. Sina Rocky, I'm very impressed. Very good introduction. रोहिणी, आपकी थोड़ी सी गलतियां हैं ग्रामर में, उसको ठीक कीजिए, रिवाइज कीजिए। ग्रामर में गलतियां हैं, इसे ठीक कीजिए। Sina Rocky is writing very nicely. Varinder Singh, देखते हैं आप क्या लिखते हो। Although the growth of nations in the last few decades in coordination with others has a lot of positive impacts, however, the other side of this trend cannot be overlooked. Thesis कहाँ है? Thesis दो मेरे को। Discuss the ideas का thesis दो वरिंदर।
Write down the thesis of this. Last 5 minutes. Hurry up, please. Last 5 minutes. Hurry up. This dissertation is going to discuss about both positive and negatives of globalization. Rohini Sharma, very nice. I love this last line. ऊपर वाले में ग्रामेटिकल गलतियां, नीचे वाले ठीक लिखा हुआ है. वरिंदर सिंह, आपका थीसिस नहीं आया अभी तक. थीसिस लिखो. बाकी सब लोग जो बैठे हुए हैं प्लीज लिखिए. All the people who are sitting here, please write it down. Write it down and show it to me. Hurry up, hurry up, hurry up. Last 4 minutes left. Quickly, please write it down fast. Okay, till you write it down, I'm going to tell you the ending part. If you haven't followed us on social media, please follow us on webberzeducomplimited, the channel that you're watching me right now. And every day at 10 p.m., I'm giving you tips on IELTS. This is a beautiful blog. Follow it. Instagram. Very good information comes here. This is the number for anything, any problem. If you have offline problem, or you have online problem, contact this number. They will help you out with each and everything, मेरे को बहुत लोगों ने पूछा था आज भी कि सर जो आप बाकी एग्जामिनेशंस कराते हैं वो क्या होते हैं. मैं जब तक ये सबको बता रहा हूं, प्लीज आप लोग बैठ के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कीजिए. ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है तो आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट कीजिए. Our IELTS examination, TOEFL का एग्जाम जो है, that is for the people, for the students to go to USA, mainly USA. If I talk about the examination of PTE, that is the latest examination जो आया हुआ है आजकल, that is to go to almost every country. Canada is taking it, USA is taking it, Australia is taking it, New Zealand is taking it, and UK is taking it. All the countries are taking this examination. If I talk about the next exam, that is IELTS, वो तो आप कर ही रहे हैं, आपको पता है इसके बारे में. Next is OET examination. OET examination is for the medical field. जो लोग nurses हैं, doctors हैं, उनको work permit मिल जाता है ये करके, medical field में हैं. तो ये काफी expensive examination है, बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है. हम इसकी तैयारी कराते हैं. We are specialists in this also. Next is life skill. Life skill is for the people going abroad for spouse visa. For spouse visa, that is what we are doing. Spouse visa. Next is UKVI. Again, it's for education to UK. CELPIP. CELPIP is for going to Canada on immigration basis. Canada immigration basis. Immigration basis. This goes to CELPIP Canada. So these are the things, these are the examinations that we are undergoing. And with this, we come to the end of our session today. And I am going to read out all the introductions that you have sent me so that you know what are your mistakes. So let me see. Varinder Singh says, although the growth of nations cannot be overlooked, thesis missing tha Varinder Singh ka, likh diya niche isne. The following paragraphs are going to discuss about the negative sides of globalization. Positive and negative. Discuss hai na, discuss the idea. So positive and negative dono aayenge. Rohini Sharma, the dissertations is going to discuss about the positives and negatives. Leena Sharma says globalization has brought countries benefits in a modern life. The positive side of globalization is reducing the disparity and distance between countries around the world. Leena Sharma says, whereas the negative sides of this loss of businesses and culture. Amolak Singh says, globalization is a term used to describe how trade and technology made the world into a more connected place. Jasprit Rattu says,
Despite world being a global village where economies get boosted, negative effects of it ought not to be missed. This essay will discuss both positives and negatives. Jaspreet Rattu, I love the way you phrased your answer. Very nice, very nice. Jaspinder Randhawa says the dissertation is going to two substantiated negatives and positives effects of globalization. Jaspinder, अपना grammar check कीजिए, grammar में गलती है. ठीक है जी, 11 बज गए, टाइम हो गया सोने का, सब लोग सोइए, रात हो गई है. कल मिलेंगे रात को 10 बजे, same time, same place. We'll be discussing more essays tomorrow because I have to remove your phobia of the essays, which is the very important thing. और कल के बाद हम शुरू करेंगे स्पीकिंग पे. हम स्पीकिंग करेंगे, मैंने आपको बुला के रूम में स्पीकिंग करवानी है, क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, बुलवाना है. लिसनिंग स्पीकिंग करते जाएंगे अगले 3-4 दिन के लिए. ओके, with this we come to the end of our session today. Wishing you all a good night. Enjoy yourself. See you tomorrow, 10 o'clock, and definitely